کیا حال ہے؟ آپ سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا. دیکھو سنا ہو تو پھٹافٹ ہاں بول دینا, کہ میرے کو ڈاکٹر نے بہت چلانے سے منع کیا اور کہا لمبا بیان بھی نہیں کرنے کا, بہت زور سے چلانے چیخنے کا بھی نہیں. تو میں ابھی مولانا سراج کو کہتا تھا پہلے جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا, تو آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ آج ساری پریشانیوں کا حل ہمیں کیسے ملے گا. ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں, بہت بڑے پیغمبر کا, بہت بڑے رسول کا ہو, جن پر قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے, جن کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام. 11ویں پارے میں ایک سورت آتی سورہ یونس, بولو سورہ, یعنی پوری سورت ان کے نام پر ہے, یہ پیغمبر کے نام پر. کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. اور ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے جوان تندرست 28 سال کی عمر کو پہنچے. کتنے سال کی عمر کو؟ 28 کا مطلب بالکل بھرپور جوانی. کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جوانی اور طاقت اور توانائی اور تندرستی اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. 28 سال کی عمر کو پہنچے اور اللہ نے فرمایا آؤ میرے یونس, میں نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اب حضرت یونس علیہ السلام نبی بن گئے. عمر کتنی بولو؟ only 28 years old, صرف 28 سال. اور حضرت یونس علیہ السلام نبی بنے تو اس زمانے میں جو نبی ہوتے تھے نا, ان کو علاقہ دیا جاتا تھا. یہ علاقے کے نبی, یہ ملک کے نبی, یہ گاؤں کے نبی, یہ دیہات کے نبی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا علاقہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا ایک بستی تھی, بہت لمبی چوڑی بستی, تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ رہتے تھے. اس بستی کا نام تھا نینوا. بولو کیا نام تھا؟ اللہ نے فرمایا میرے یونس آپ یہ پورے نینوا کے نبی ہو. مطلب ہے کہ ان کو سلیکٹ کر لیا, اللہ نے ٹرافی دے دی کہ آپ میرے نبی رہو گے. بولو الحمدللہ. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا 1 لاکھ ہے یا 1 لاکھ سے زیادہ مرد ہیں, عورتیں ہیں, ایک ہی محنت, دعوت اور تبلیغ, لا الہ. ساتھ میں بولو لا الہ. اللہ نے ہر نبی سے پہلی محنت یہی کروائی, لا الہ الا اللہ. یہاں تک کہ ہمارے آقا, بولو نا محمد رسول اللہ, بہت بہت پیارے نبی, بہت پیارے نبی. میرے پیارو, ابھی وہ جو بچہ پڑھ رہا تھا ایسا دل تڑپتا تھا, کب اللہ کرے کہ ہم مدینہ پہنچ جائے, کب اللہ کرے ہم مکہ پہنچ جائے. اور اگر اللہ نے عمر میں برکت دیے تو رکھے, ورنہ مدینے کا کوئی ٹکڑا ہی اللہ ہم کو نصیب کر دیں گے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. لیکن ہمارے نبی نے معراج سے واپس ہوتے ہوتے پوچھا اللہ مکے جا رہا, بھائی معراج اب آسمان سے مکے کی زمین پر آ رہا ہوں, اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے وہی کام جو ہر نبی کو دیا, اپنے مصطفیٰ کو فرمایا جاؤ جا کر لا الہ. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے آقا, بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ معراج پر آئے, 7 آسمانوں کو پار کر کے آئے, 8 جنتوں کو پار کر کے آئے, لیکن میرے محبوب مشن اور محنت وہی رہے گی, مکے پر جاؤ اور اعلان کر دو لا الہ. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا, وہ پورے علاقے کا جس کا نام تھا نینوا, اور کہا جا کے محنت کرو لا الہ. یونس علیہ السلام جوان تھے, عمر کتنی؟ بہت محنت کی, بہت محنت, یعنی آخری درجے کی جد و جہاد. لیکن معاملہ کچھ ایسا تھا, ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ لوگوں نے مارنا شروع کیا, گالیاں دینا شروع کی, ان کے چہرے انور پہ تھوکنا شروع کیا, ان کو وہاں سے نکالنے کی باتیں. اب لیکن حضرت یونس علیہ السلام محنت کاوش کوشش, بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, گلی گلی چپے چپے ہر جگہ ایک ہی اعلان لا الہ الا اللہ. ایک دن سب جمع ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو بہت مارا, اور مارنے کے بعد بہت گالیاں دیا. بس حضرت یونس علیہ السلام نے ارادہ کیا مجھے نینوا چھوڑ دینا ہے. بولو مجھے نینوا چھوڑ دینا ہے. جوان تھے, بس بہت سال ہو گئے, محنت کی, گھر گھر گئے, لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. بس کچھ ہے بندے بندیا جو مان رہے, باقی کوئی نہیں مانتا. بس حضرت یونس علیہ السلام وہ کہتے ہیں نا, غصے کے عالم میں ارادہ کیا مجھے نینوا چھوڑنا. اور کسی کو بولے بغیر, بولو حضرت یونس علیہ السلام, ہو سکتا کوئی سواری ہوگی تو سواری پر بیٹھ کر یا پیدل, مطلب ہے کہ نینوا سے بولو نکل گئے. لوگ ڈھونڈتے رہ گئے. حضرت یونس علیہ السلام گئے, چلتے گئے, ایک دریا کنارے پہنچے. وہ دریا کا نام ہے فرات.
बोलो दरिया का नाम क्या है? फुरात। अच्छा वहाँ गए तो देखा एक बहुत बड़ी कश्ती है और कश्ती में सब लोग बैठे हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ गए, पूछा भाई कश्ती कहाँ जा रही है? तो पता चला बहुत दूर, यानी ऐसा लगता है कि ये मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में कश्ती चली जाएगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में थे, निनवा से गुस्से में गए थे, दरिया किनारे आए, आप भी कश्ती में बैठ गए, कश्ती शुरू हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है? कश्ती में। कश्ती चली बिल्कुल बीच समंदर में, हाँ रात का वक्त, तन्हाई, और कश्ती चल रही है। अचानक तूफान आया। बोलो अचानक तूफान। ऐसी कश्ती हिचकोले खाने लगी और चारों तरफ से पानी का जो तूफान ऊपर तक उठे आ रहा है। अब सारे कश्ती वाले परेशान हैं और जो कश्ती के नाखुदा है, जो चलाने वाले जिनको हम कैप्टन कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया कोई भरोसा नहीं, थोड़ी देर में कश्ती पलट जाएगी, हम सब मौत के घाट उतर जाएंगे। मालूम नहीं गैब से आवाज आई, बचना चाहते हो? भाई गैब से आवाज आई, कश्ती वालों बचना। क्या जवाब मिलेगा? अरे कौन मना करेगा, कौन मना करेगा? सबके सब हाँ बचना। तो गैब से आवाज़ आई, एक भगोड़ा है तुम्हारे अंदर। भगोड़ा यानी अपने मालिक की परमिशन के बगैर भागा हुआ एक है तुम्हारे अंदर, उसे कहो दरिया में छलांग लगाए। वो छलांग लगाएंगे, हम तूफान खत्म करेंगे, तुम्हारी कश्ती किनारे पहुंच जाएगी। लेकिन एक भगोड़ा है जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर, विदाउट परमिशन, आपकी कश्ती में बैठा है, उसको कहो कि वो। अब कश्ती वालों ने ऐलान किया, भाई कौन है वो? कौन है वो जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहा मैं हूँ। कहा अल्लाह की कसम, उनकी इजाजत के बगैर आया हूँ। मुझे उन्होंने नहीं कहा था कि निनवा छोड़ देना, मैंने गुस्से में निनवा छोड़ दिया। उन्होंने नहीं कहा था फुरात दरिया पर आना, मैं गुस्से में दरिया फुरात पर आया। उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी थी कि कश्ती में बैठना, मगर मैं कश्ती में बैठ गया। मुझे जाने दो, मैं छलांग लगाता हूँ, रात का सन्नाटा है, मैं दरिया में छलांग लगाता हूँ, तुम्हारी कश्ती किनारे। लेकिन सबने जब देखा ना, वो जमाने के लोग भी कितने सीधे साधे थे, कहा ना तुम तो लगते ही नहीं हो कि भागे हुए हो, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है, कितने जवान हो, कितने तंदुरुस्त हो, कितने हट्टे कट्टे। और सच बताओ, सारी पब्लिक जो होगी वो पब्लिक है और ये तो अल्लाह के नबी है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, इनके चेहरे की जो चमक होगी वो कुछ और ही अंदाज होगा। सबने कहा नहीं, तो कहा नहीं मैं ही हूँ। सबने कहा नहीं, हम तुमको ऐसा दरिया में छलांग लगाने नहीं देंगे। उस जमाने में कहते, आज भी होता है चिट्ठी उड़ाना। आज क्या कहते? चिट्ठी उड़ाना। वो उसको उर्दू में कहते कुरआ अंदाजी। उर्दू में क्या कहते हैं? कुरआ अंदाजी, यानी चिट्ठी उड़ाए। भाई जितनों के नाम है, सबके नाम एक पर्ची पर लिखे और उठाए, जिसका नाम आए उसको दरिया में छलांग लगा देने का। 3 मरतबा चिट्ठी उड़ाई गई, तीनों मरतबा नाम आया यूनुस। किसका नाम आया? जब तीसरी मरतबा इनका नाम आया तो इन्होंने सबको कहा, क्यों बार बार चिट्ठियाँ उड़ाते हो, क्यों कुरान अंदाजी करते हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मालिक की इजाजत के बगैर नेनवा से निकला हूँ, मालिक की इजाजत के बगैर फुरात आया हूँ, मालिक की इजाजत के बगैर मैं कश्ती में बैठा हूँ। और फिर ना दाएं देखा ना बाएं देखा, अल्लाह का नाम लेकर बोलो छलांग लगा दी। क्या मौज मारता हुआ पानी, थपेड़े मारता हुआ पानी। जैसे इन्होंने छलांग लगाई, सारी मौजें तो खत्म हो गई, मगर सबने देखा एक बड़ी मछली आई। बोलो क्या है? एक बड़ी मछली आई, अपना यूं मुंह खोला। जैसे हज़रत यूनुस ने छलांग लगाई, पानी में ले गए, डायरेक्ट मछली के मुंह में चले गए और सीधे मछली के मुंह से कहाँ चले गए? मछली के पेट में। और मछली सीधे एक डुबकी मारी और सीधे समंदर की गहराई में चली गई। मेरे प्यारों, आप सोचो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में रहे। कितने दिन? यानी हजरत यूनुस इंसान है, नबी है, पैगंबर है, रसूल है, प्रॉफिट है। 40 days 40 nights इन द स्टमक ऑफ ए फिश। एक मछली के पेट में रहे। देखो, इंसान मछली के पेट में रहे बड़ा कमाल है, बाकी मछली अपने पेट में। अभी मौलाना सिद्दीकी का धपा मछली खाकर आया, वो हमारे पेट में घूम रही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इंसान मछली के पेट में। और फिर कुरान करीम ने जो कहा ना कि यूनुस 40 दिन और 40 रात 3 अंधेरों में भटकते रहे। कितने अंधेरों में? अब सवाल होता कौन से 3 अंधेरे में थे? तो सवाल है कि पहला अंधेरा मछली का पेट, बोलो मछली का पेट। दूसरा अंधेरा जब रात हो जाए तो अंधेरा ही अंधेरा। और तीसरा अंधेरा मछली कहाँ चली गई थी? समंदर की गहराई में। तो समंदर की गहराई का अंधेरा मेरे प्यारों कहा जाता है, बल्कि सही रिवायतों में लिखा 40 दिन 40 रात में हज़रत यूनुस के कपड़ों का ठिकाना नहीं। भाई मछली के पेट में कौन से कपड़े बाकी रहेंगे? चमड़ी का मुबारक का ठिकाना नहीं, हड्डियों का ठिकाना नहीं, एक ढांचा बन गए मछली के पेट में। लेकिन 40 दिन और 40 रात के बाद हज़रत यूनुस ने एक दुआ पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह। क्या प्यारी दुआ पढ़ी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने। वो मछली के
पेट में दुआ पढ़ी, बस वो दुआ पढ़ना था। बोलो सुभान अल्लाह, वो दुआ पढ़ना था। हालांकि पढ़ाने वाला खुद अल्लाह, अरे बोलो पढ़ाने वाला खुद अल्लाह, लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे यूनुस 3 अंधेरों में ये दुआ पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आ गई। अल्लाह कहते मेरा बंदा तू मुझे पसंद आ गया, मेरा यूनुस तू मुझे पसंद आई, इतनी प्यारी दुआ तूने पढ़ी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया ऊपर, वो जो मछली 40 दिन 40 रात से समंदर की गहराई में तो ऊपर आई। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया किनारे पे जाओ, मछली किनारे पे आई। अल्लाह ने कहा अपना मुंह खोलो, हजरत मछली ने अपना मुंह खोला, हजरत यूनुस बाहर आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब बाहर आए तो बदन पे न कपड़ा है न चमड़ी है, एक हड्डियों का ढांचा है, बड़े परेशान है। बाहर आकर भी वही पढ़ रहे जो कहाँ पढ़ा था, 3 अंधेरों में, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा। वही दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाहर आकर पढ़ी। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ जन्नत का खाना और जन्नत का पानी लेकर जाओ। हजरत यूनुस को जब मिला फिर जवान हो गए। अल्लाह ने कहा नबी थे, अभी भी तुम मेरे नबी हो। बोलो सुभान अल्लाह। वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 अंधेरों में, बोलो एक दुआ, चलो वो दुआ पढ़ी, मुसीबत खत्म। हाँ बोलो ना, मछली के पेट का अंधेरा खत्म, रात का अंधेरा खत्म, और समंदर की गहराई का अंधेरा खत्म, और बाहर आए तो जन्नत का मेवा। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का खाना, जन्नत का पानी, जिब्राइल की मुलाकात, पहले भी नबी अब भी नबी, मतलब सारी मुसीबतें खत्म, हर मुसीबत खत्म, और हर खुशी आपके कदम, हर मुसीबत खत्म, हर खुशी आपके कदम। जब ये कुरान पाक में ये पूरा वाक़या आया तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा वो यूनुस थे। बोलो वो यूनुस थे, उन्होंने ये दुआ पढ़ी, मैंने सब मुसीबतों से नजात दिलाई और सारी खुशियां उनके कदमों पे लाकर रख दी। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम, मेरे मुस्तफ़ा यही दुआ आपकी उम्मत पढ़ेगी, आपकी उम्मत का मर्द पढ़ेगा, आपकी उम्मत की औरत पढ़ेगी, क़यामत तक पढ़ेंगे। जिस अल्लाह ने हजरत यूनुस से मुसीबत को खत्म किया और खुशी को खत्म पर लाया, वही अल्लाह तुम्हारे उम्मती की मुसीबत को भी खत्म कर देगा। जान की परेशानी खत्म, माल की परेशानी खत्म, औलाद की परेशानी खत्म, बीवी की परेशानी खत्म, समाज सोसाइटी की परेशानी खत्म। लेकिन जो हजरत यूनुस ने दुआ पढ़ी, वो दुआ आपका उम्मती इखलास के साथ पढ़ेगा। अल्लाह फरमाते दुआ वही है, अल्लाह वही है, आसमान वही है, जमीन वही है, बस इखलास के साथ पढ़ ले, वो अल्लाह आज भी तुम्हारी तमाम मुसीबतों को खत्म कर देगा। अब ये पूरी बात मैं आपको कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। पारा नंबर 17, बोलो पारा नंबर, जिसमें हजरत यूनुस का 3 अंधेरों में क्या करना? दुआ पढ़ना, अल्लाह का मुसीबतों को ख़त्म करना, जन्नत को करीब लेकर आना, और फिर अल्लाह का कहना मेरे आखिरी नबी आपका उम्मती पढ़ेगा, मैं उनकी मुसीबत को भी ख़त्म कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये पूरा वाक़या बोलो कहाँ पर लिखा हुआ है? कुरान में, पारा नंबर 17। बोलो ना पारा नंबर। कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में? जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा? जरा हाथ ऊपर करें ना, माशाअल्लाह। पारा नंबर याद है? पारा नंबर 17। ये कोई सूरह यासीन की थोड़ी आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। यासीन याद होती मौलाना सिराज? बहुत पूछो क्यों? दुकान का शटर ऊपर करो, सूरह यासीन पढ़ो। एक सूरह यासीन कम वक्त पढ़ता है, वो भी पैसे के लिए पढ़ता है। सही में मेरे दोस्तों, जब तक ये मोबाइल की शैतानियत हमारे पास रहेगी ना, वहाँ तक कुरान पाक की नेमत हमारे पास नहीं आएगी।